A very warm and cheerful morning to one and all present here. I, Khushi, Innovation Ambassador and Student Innovation Coordinator, extend a very warm welcome to all the respected dignitaries, faculty members and my dear friends. On the behalf of Institutions Innovation Council, DAV College for Girls, I warmly welcome you all for today's session on AI and Industry 4.0, tools for innovators and entrepreneurs. I would also like to express our sincere gratitude to our IIC President and Principal Madam, Dr. Surinder Kaur, IIC Convener, Mrs. Vivek Madam, Program Convener, Ms. Manika and Mrs. Mamta Thapar Ma'am, and Program Coordinator, Ms. Shelley, for their constant support, guidance and organizing this insightful session. Now, it's my pleasure to introduce our resource person, Mr. Avtar Singh Rohila sir. He is an MBA graduate from IP University specializing in marketing and international business. He has worked as a share market research analyst and is a business owner of Lakshman Security and Consultancy Services with experience in entrepreneurship, branding, corporate training. He has also collaborated with organizations like American Express and Select City Walk, Gurgaon. I invite Mr. Avtar Singh Rohila to kindly please take on the stage. Thank you, sir. Sorry. So, invite Principal Madam, IIC Convener Ma'am, Mamta Ma'am, Manika Ma'am and Shelley Ma'am to please kindly come forward to present the planter and token of regard to sir. मैम हल्का सा पौधा नीचे मैम यस हाँ मैम यस मैम हरियाणा का कल्चर Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite the sir on the stage. Respected Principal Mrs. Surinder Kaur, dear faculty members and students. I sincerely thank Principal Ma'am for this opportunity to have me out here. It's a pleasure to be in this college. It's such a renowned institute of yours. And today the topic I'll be discussing about is Industry 4.0, use of AI tools. And so how is AI shaping our future? तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं. So what is Industry 4.0? Anyone, any idea about this? Industry 4.0 है क्या? See, हम बहुत सारे revolution से गुजरे, industrial revolution से. We had our first industrial revolution in 1763. तो उस टाइम क्या होता था कि आपको steam engines के थ्रू काम करते थे हम. हमारी train steams पे चलती थी, coals पे चलती थी. बहुत ज़्यादा raw material use होता था, बहुत कम production होता था. धीरे-धीरे we evolved. Can you change the slide? Next. So धीरे-धीरे in 1870s when electricity was introduced to us, तो हमने electricity के through चीज़ों को करना शुरू करा. ऐसे ही 1969 के अंदर कंप्यूटर्स हमारे पास आए, ऑटोमेशन हमें देखने को मिला कि ऑटोमेट चीज़ें कैसे होती है, कैसे मशीनरी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है थ्रू ऑटोमेशन. और अब हम 2026 में हैं, तो इंडस्ट्रियल 4.0 स्टार्ट हुई हमारी 2015 से. 2015 के बाद से हमने AI का यूज़, आप सब AI के बारे में जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 2015 के बाद से हमने AI का यूज़ करना शुरू किया है, जिसने हमें इतना हेल्प आउट किया कि हमारी मशीन्स आजकल खुद ही आपस में बात कर रही हैं. आपने सबने डार्क फैक्ट्रीज के बारे में सुना होगा. किसी ने डार्क फैक्ट्री के बारे में सुना? नहीं. तो डार्क फैक्ट्रीज क्या होती हैं? जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन रहता है एक डार्क फैक्ट्री में.
डार्क फैक्ट्री में कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं रहता है, सिर्फ एआई ही के थ्रू मशीन चल रही है। अगर किसी मशीन को डिफॉल्ट भी आता है किसी मशीन में, तो वो मशीन दूसरी मशीन को बताती है कि देयर इज अ डिफॉल्ट, और इसे ठीक करने के लिए आप मानेंगे कि रोबोट्स हैं। और उस फैक्ट्री के अंदर जैसे हमारे यहाँ लाइट्स है, क्योंकि आदमी को लाइट चाहिए देखने के लिए, उन फैक्ट्रीज में कोई भी लाइट नहीं है। तो देखिए कितने कितने ब्राइट फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो है। और इसीलिए मैं चाहूँगा, क्योंकि आईसीएसई की तरफ से जो आपको ये मौका मिला है आपको समझने का कि एआई मॉडल क्या है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 1991 में जब आईटी रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम कुछ भी नहीं, मतलब कुछ बिलियनर्स टेक से नहीं होते थे, लेकिन जितने भी बिलियनर्स आईटी रेवोल्यूशन के बाद बने हैं, जो 90s के बाद आया है, आप माइक्रोसॉफ्ट लीजिए, आप एप्पल लीजिए, वो सब बिलियनर्स जो हैं वो आईटी रेवोल्यूशन से हैं। और अब चल रहा है एआई रेवोल्यूशन, जिसका पार्ट आपको भी बनना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। सो इंडस्ट्रियल 4.0 कुछ की टेक्नोलॉजीज हैं जो उसमें यूज होती हैं, which first one is IoT. IoT is Internet of Things. Internet of Things में हमें क्या करता है, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके देता हूँ। आप एप्पल स्मार्ट वॉचेस आजकल यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं। तो एक स्मार्ट वॉच क्या करती है, आपका टेम्परेचर देख सकती है, आपका हार्ट बीट, हार्ट रेट देख सकती है। उसी बेसिस पे वो किसी भी अपोलो हॉस्पिटल की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकती है कि अगर आपको बुखार है, 100 से ऊपर आपका फीवर है, तो वो आपसे पूछेगी कि डू यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो वो अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे डायरेक्टली विदाउट हिम, आपको कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऐप पे मैसेज भेजेगा और वो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ योर्स, या फिर आपको कॉल मिलाना पड़े या फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े। और बड़ी सिटीज़ में, हमारे इंडिया की ही बड़ी सिटीज़ में ये काम हो रहा है। तो ऐसे ही IoT इंडस्ट्री में यूज होती है, एक फैक्ट्री के थ्रू फैक्ट्री बात कर सकती है। कैसे, आप सोचेंगे बड़ी अजीब सी बात है कि एक फैक्ट्री से कैसे बात करेगी, बट डार्क फैक्ट्रीज में आजकल ऐसा ही हो रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसकी प्रोडक्शन है 100, अब वो प्रोडक्शन से ज़्यादा आउटपुट आ रहा है उसमें 110, तो उससे क्या हो रहा है, मशीन्स पर असर पड़ रहा है। अब मशीन पर असर पड़ रहा है तो दूसरी फैक्ट्री है जिसमें थोड़ा आउटपुट कम हो रहा है, हम वो ट्रांसफ़र, हम नहीं, AI वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरी फैक्ट्री के लिए। तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT फॉर यू। द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट अ मशीन विच इज सिमुलेटिंग ह्यूमन लाइक बिहेवियर। एक मशीन जो कि ह्यूमन जैसा बिहेव करती है, वो प्लानिंग करती है, एग्जीक्यूट करती है उन प्लान्स को और बताती है हमें कि हमें कैसे वो चीज़ें करनी है। तो दैट इज द रोल ऑफ AI इन इंडस्ट्री 4.0। Next slide, please. The role of advanced robotics. अब advanced robotics और AI लगभग एक जैसी चीजें लगती है, but they are both very different. Not very different. They can be combined together. अब robotics जो काम कर रहे हैं कि मैंने एक रोबोट को ये दे दिया कि हाँ ये प्रोडक्शन लाइन है मेरी, इस प्रोडक्शन लाइन से आप चीज़ निकाल के इधर रखिए, मतलब मैं एक रोबोट को कुछ भी दे सकता हूँ। आप डॉक्टर कोहली का एग्जांपल लीजिए, आप यमुनानगर की ही बात करते हैं, तो डॉक्टर कोहली ने एक नी सर्जरी स्टार्ट की है जो कि प्योरली रोबोटिक्स पे काम करती है। हाँ, अभी उनका इंटरवेंशन रहता है, बट इन फ्यूचर वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर लेंगे और वो AI पे चलेंगे। तो ऐसे ही फैक्ट्रीज में भी आपकी, जैसे जिस डार्क फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रोबोटिक्स पर ही काम कर रही है, वो रोबोटिक्स के थ्रू ही, मतलब जितने भी अपने काम है वो काम कर रही है, चाहे वो प्रोडक्शन बढ़ाना हो, चाहे आपका मार्केटिंग हो, सेल्स हो, किसी भी चीज़ है, वो सब रोबोटिक्स कर रहे हैं आजकल। Now, cloud computing and big data analysis. इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। Amazon के बारे में सबने सुना है? Amazon क्या करता है? Amazon क्या करता है? ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करता है, राइट, वेरी राइट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन शॉपिंग, प्राइम वीडियो, ये सब Amazon के लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं। तो Amazon प्रॉफिट कैसे करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, Amazon के पास जितने भी डेटा है माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, तो वो उनके साथ डील करता है उस डेटा को सेव करने के लिए क्लाउड में। बहुत बड़े बड़े क्लाउड सेंटर्स Amazon के बने हुए हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और करता क्या है,
क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अब शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है। शेयर मार्केट में एपीआई के थ्रू आप बिना कंप्यूटर को खोले, बिना किसी चीज़ के आप शेयर मार्केट में ट्रेड अभी के अभी ट्रेड ले सकते हैं। आपको सिर्फ ऑटोमेशन चाहिए, उसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आपने अपना एपीआई बनाया, आपका ब्रोकर है, ज़ीरोधा हो सकता है, ग्रो हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल हो सकता है। आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू इन दोनों को जोड़ दिया और फिर आपने अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी। स्ट्रैटेजी भी आप कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड पर थ्रू एआई। दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, किसी को पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? AR एंड VR। सी AR होता है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इज समथिंग, जैसे मैं यहाँ पर एक अपना फ़ोन लेता हूँ, कैमरा पॉइंट आउट करता हूँ आप लोगों की तरफ, उसमें मैं किसी के भी चेहरे की तरफ क्लिक करता हूँ, उस चेहरे पर सभी के नाम आ जाए, है ना? तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, मतलब वो रियलिटी पे बेस्ड है। जो भी सामने मेरे सिनेरियो है उस चीज़ पे ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड है। और VR क्या है? VR इज वर्चुअल रियलिटी, कि वर्चुअली है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास VR हेडसेट है, मैं ताजमहल घूम रहा हूँ, ताजमहल देख रहा हूँ, तो दैट इज VR। और यही चीज़ें आपको फैक्ट्री टू फैक्ट्री भी काम आती हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी काम आ रही हैं। मतलब इसका इम्प्लीकेशन थोड़ा अलग है, जितना जैसा आजकल अभी मार्केट में है, मतलब जैसा हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में इसका इम्प्लीकेशन बहुत अलग है, क्योंकि डार्क फैक्ट्रीज हैं, लोग VR और AR के थ्रू ही मतलब अपनी फैक्ट्रीज को देख सकते हैं कि उसमें कुछ, मतलब अभी भी हमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए ही ना, क्योंकि हो सकता है AI भी 99% सही है, 1% तो वो भी गलत हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिग डेटा एनालिटिक्स एंड वर्कफ्लो। बिग डेटा एनालिटिक्स, अब बिग डेटा एनालिटिक्स आपका हुआ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। आप इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, आजकल तो सभी के पास इंस्टाग्राम है। तो जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे हर किसी के पास बहुत अलग अलग रील्स आती हैं, हर किसी के पास। वो कैसे है? वो बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू है। पहले आपका डेटा कलेक्ट होता है, आपका डेटा क्लाउड में जाता है, क्लाउड उसको एनालाइज करके बहुत डिफरेंट वेज में बांटता है, और एट द एंड आपका AI आपको बताता है कि ये चीज़ इसके पास है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा हो गया कि अगर किसी स्टूडेंट को एडवर्टीजमेंट देनी हो, तो मैं किस चीज़ की एडवर्टीजमेंट दूंगा? मैं मशीनरी के लिए मैं किसी स्कूटी, कार या बाइक का एग्जांपल लेते हैं, किसी स्कूटी का एग्जांपल दूंगा एक स्टूडेंट के लिए, बिकॉज वो उससे जाता है। लेकिन वहीं मैं अगर प्रिंसिपल को अगर एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ तो मैं एक कार की दूंगा, मे बी ऑडी या मर्सिडीज के दूंगा प्रिंसिपल मैम को। तो ये इस तरीके से हमारा बिग डेटा एनालिसिस का वर्कफ्लो काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, अब ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक 3D मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जिसमें आपके बहुत सारी कंपनी के छोटे छोटे टूल्स बनते हैं, जो ऑटोमोटिव में काम आते हैं, और कार मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं वो आज के टाइम में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बन रहे हैं। चाइना के अंदर आज भी बन रहे हैं, इंडिया तो अभी खैर हम बहुत पीछे हैं। आई होप आज जैसे ब्राइट माइंड्स जो हैं उनमें से कोई ना कोई AI के रेवोल्यूशन को ज्वाइन करेगा, और फ्यूचर ही इसी में है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस आज के टाइम में करते हैं तो आपको AI का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी एक की टेक्नोलॉजी भी है और एक चैलेंज भी है इंडस्ट्री के लिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे चोर बैठे हैं हर जगह। उन चोरों में से उनको अगर रोकना है तो आपको एक फायरवॉल बनानी पड़ेगी। वो फायरवॉल बड़ी बड़ी कंपनीज में तो करते हैं, आपको अपना डेटा सेव करना है, तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फायरवॉल आपका मैकफ्री आप वो लोग यूज़ करते हैं, जितने भी डेटाज हैं, तो वो इसीलिए बने हैं कि आपका साइबर डेटा प्रोटेक्ट किया जाए, और यही साइबर सिक्योरिटी। और बड़े सारे आजकल तो फ्रॉड हो रहे हैं, हमारी तो सरकारें खुद कह रही हैं कि आपको सावधान रहना है। फ़ोन में सबके रिंगटोन आता है फ़ोन में कि हाँ सावधान रहिए और इसके बारे में कुछ कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब साइबर सिक्योरिटी से इंडस्ट्री 4.0 से
इनकी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो ह्यूमन 8 घंटे तक का काम करता था या 12 घंटे का काम करता था, मशीनरी 24/7 365 डेज हमारी काम कर रही हैं, ऑल ड्यू टू AI एंड इट्स रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्री 4.0। हर चीज़ का आपको रियल टाइम इंसाइट मिलता है कि कहाँ पे मेरी कमी आ रही है, प्रोडक्शन में मेरे कहाँ कमी आ रही है, मेरी मशीनरी में अगर कमी है तो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन पर आप वो ऑटोमेट कर सकते हैं कि हाँ जहाँ पे भी कोई कमी हो, फिर आप डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक स्मार्ट वॉच का आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हॉस्पिटल को और अपना अपॉइंटमेंट बुक सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है इंडस्ट्री इसमें कि आपका अभी एक स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन चली हुई है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई प्रोडक्ट चेंज करना है तो AI आपको खुद ही वो चीज़ बता देता है। मतलब इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल AI कि आपको कुछ भी करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 100 गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं साल की और आप देख रहे हैं कि मेरी जो लिमिट है वो है 150 गाड़ियों की, मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं 120 गाड़ियों के, तो वो अपने आप स्ट्रीमलाइन करके उस 100 की कैपेसिटी को 120 तक ले जाएगा। तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी विच कैन बी अचीव्ड बाय AI और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अगेन। चैलेंजेस आज के टाइम में हमें बहुत सारे चैलेंजेस इसीलिए फेस करने पड़ रहे हैं। चाइना और हमें यही डिफरेंस है कि उनके पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स है और हम लोग उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम रील्स के बाहर AI को कुछ समझते नहीं है, या फिर चैट GPT से कुछ छोटी छोटी बातें पूछने के लिए हम सोचते हैं कि बस हो गया हमारा। लेकिन बहुत बड़ा रोल है। आप मानेंगे आज के टाइम में आप वेबसाइट बनाने की एक अपनी खुद की फर्म खोल सकते हैं और सिंपल है, रेडिट पे जाइए और अपनी वेबसाइट का नाम डालिए, कुछ डिस्क्रिप्शन डालिए, आपकी वेबसाइट तैयार है। अब बहुत सारी यमुनानगर में फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, बड़े बड़े शॉप्स हैं जिनकी कोई वेबसाइट नहीं है। अब आप उनके पास जाके उनको एक बार अप्रोच कीजिए, पूछिए कि मैं आपकी वेबसाइट, और कितना टाइम लगता है, मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर AI आपको वेबसाइट बना के दे देता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क। साइबर सिक्योरिटी, अभी मैंने जैसे आपको बताया, साइबर सिक्योरिटी का हमेशा ही AI में एक रिस्क रहेगा, क्योंकि जैसे हम AI यूज़ करके टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वैसे ही जो कोई बाहर का कोई डार्क पर्सन है वो भी इस चीज़ को ऐसे ही यूज़ करता है और कोशिश कर सकता है हमारे सिस्टम को ख़राब करने की। तो साइबर सिक्योरिटी भी AI में एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। हाई कॉस्ट, अभी फ़िलहाल के लिए AI बहुत इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में है, क्योंकि हमारे GPUs जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। अब GPUs क्या है, हमारे जितने भी GPUs हैं, NVIDIA US की एक कंपनी है, तो NVIDIA के थ्रू हमारे GPUs इंपोर्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर ही AI चलता है। और उसकी कमी के कारण हमें बहुत सारे हाई कॉस्ट और फेस करनी पड़ती है। जैसे US ने टैरिफ लगा दिया तो वो GPUs को इंपोर्ट करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दैट इज़ द रिस्क, द हाई कॉस्ट। अब हम आते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। अब AI की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, आपके लिए क्या हो सकती है? आप में से किसी ने भी AI का यूज़ किया है? ऑब्वियसली कैनवा AI तो आई थिंक सभी यूज़ करते होंगे आप लोग PPTs अपनी बनाने के लिए। इसके अलावा आपने AI के थ्रू कुछ करने का सोचा है, कुछ करने की सोची, या फिर गूगल की तरह ही भी यूज़ कर रहे हैं आप लोग AI को? आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। AI में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब वीडियो, अगर आपको इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम और वीडियो एडिटिंग में, तो AI इतना एडवांस हो चुका है कि आपको कोई भी पर्सन अपनी शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं सिर्फ उस AI के फेस से। तो मैं आपको ये होमवर्क भी देना चाहूँगा कि आप अपनी पहली AI वीडियो, आज आपने किसी ने बनाई है AI वीडियो आज तक? किसी ने नहीं? तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जाइए चैट GPT पर अपना एक इन्फ्लुएंसर का फेस बनाइए कि ऐसे ऐसे गर्ल हूँ मैं, 5 फीट, और जो भी आपकी हाइट वगैरह आपका डिस्क्रिप्शन दीजिए। चैट GPT आपको एक इमेज देगा, उस इमेज को आप ग्रॉक के बारे में सुना है आपने? आप उस इमेज को ग्रॉक में डालिए और अपना 5 से 10 सेकंड का एक वीडियो बनाइए। दैट इज़ योर होमवर्क। आपकी पहली एक वीडियो तैयार हो जाएगी AI से। एटलीस्ट इट विल बी अ गुड स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ टूल्स फॉर बिजनेसेस। अब Replit है,
रेपलेट क्या करता है, आपका वही वेबसाइट है, उस वेबसाइट को बनाने के लिए सिर्फ 2-4 डिस्क्रिप्शन आपको देने हैं, उसे प्रॉम्प्ट देने हैं उसको, और वो आपकी वेबसाइट तैयार कर देगा। किसी भी कंपनी की, किसी भी, बस आपको सिर्फ उसके कलर्स की, लोगो का कलर मेरा ये होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन देने हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स देने हैं, लोगो का कलर मेरा ये होगा, मेरी कंपनी का फ़ोन नंबर, इन्फॉर्मेशन अबाउट माय कंपनी, कब से मेरी कंपनी काम कर रही है, और वो आपको पूरी वेबसाइट आपकी तैयार करके देगा। देन कम्स नोटबुक KLM। जैसे अभी ये लेक्चर हो रहा है, कोई ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है, अब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके अगर नोटबुक KLM में डालता हूँ, तो नोटबुक KLM मेरे लिए क्या करेगा, नोटबुक KLM मेरे लिए उस लेक्चर की एक समरी बना के दे देगा, और वो समरी मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। सो सी, ऐसे हज़ारों टूल्स हैं, ये बहुत, मैं 2-3 टूल्स लिख के आया हूँ, लेकिन ऐसे हज़ारों टूल्स हैं। आप रिसर्च कीजिए, AI के बारे में समझिए, क्योंकि AI ही फ्यूचर है। आपकी जॉब्स, इतनी IT की जॉब्स खत्म हो रही हैं, आप सुन रहे होंगे, वो AI की वजह से ही हो रही है। इसलिए आपको AI अपनी जीवन में अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मकसद से इस कॉलेज ने भी ये प्रोग्राम रखा है कि आप AI को समझें, सिर्फ उसे गूगल तक लिमिटेड ना रखें, समझिए उसकी क्या एप्लीकेशन, कोई भी एक AI का टूल उठा के देख लीजिए, और उस टूल के अंदर अपनी जी जान लगा दीजिए, और देखिए कि क्या उस टूल से मैं क्या निकाल सकता हूँ। कोई भी अभी पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी AI का, लेकिन आप फ्री वर्जन से इतना कुछ सीख जाएंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट उसमें बनना शुरू हुआ, आप उसमें काम आपको मिलना शुरू हुआ, तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी जर्नी में वो बहुत काम आएगा। देन वी हैव ManyChat। ManyChat क्या करता है, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन करता है। अब आप इंस्टाग्राम के आपके मैसेजेस हैं, या फिर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम के ऐड चला रहा हूँ, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करें, ऑटोमेट करके वो मेरे को मेरी वेबसाइट पे ले जाएं, तो वो काम ManyChat करता है। बहुत सारे मैसेजेस आपको आते होंगे कंपनीज के, तो वो ManyChat के थ्रू ही काम हो सकता है इस चीज़ का। देन प्रॉम्प्टिंग एक अनदर AI टूल है। अब प्रॉम्प्टिंग क्या करता है, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है AI में कि प्रॉम्प्ट नहीं लगता। अब एक वीडियो ही अगर आपको AI पे बनानी है, तो कभी आपने देखा होगा, कभी हाथ ऊपर हो गया, पैर नीचे हो गया, बड़ी अजीब सी AI की वीडियोस बनती है, तो वो प्रॉम्प्टिंग की ही कमी की वजह से। और प्रॉम्प्टिंग एक ऐसा AI टूल है जो आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा। Next slide, please. तो आपने चांदी के बारे में सुना होगा, चांदी बहुत चल रही है, बहुत बढ़ गई है, हर कोई चांदी के बारे में आजकल बात कर रहा है। तो चांदी को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था थ्रू AI। अब शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, हर कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हर कंपनी को आप पढ़ भी नहीं सकते हैं कि मेरे को कौन किस में बाय करना है, किस में नहीं करना है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप ये देख रहे हैं, ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ट्रेड करता है, मतलब आप समझते ही होंगे ये चीज़, तो कि सिल्वर के बीज हैं, सिल्वर ETF है, तो सिल्वर ट्रेड करता है। तो ये आप देखेंगे, ये है 1978, फिर ये है आपका 2011, और ये है आपका 2025-26। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी खुद की डेवलप की हुई है, जिसे मैं कहता हूँ 52 वीक हाई स्ट्रैटेजी। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा स्टॉक है जो अपने बहुत 5-10 साल के बाद अपने एक लेवल को, मतलब किसी स्टॉक का प्राइस आज से 10 साल पहले, जैसे अब चांदी है, सिल्वर है, सिल्वर का प्राइस आज से 10 साल पहले था $48 के आसपास। यही प्राइस 1978 में भी $48 के आसपास ही था। तो सिल्वर ने ब्रेक किया है अपने प्राइस को करीब 40-50 साल बाद। तो मैंने अपनी वाइफ को भी यही चीज़ कही कि आप चांदी में इन्वेस्ट करो। 2 लाख की चांदी, 2 लाख उनकी FD थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। अक्टूबर की ये बात है। तो मैंने उसे कहा कि आपको FD में 7-8% का ही तो रिटर्न मिलेगा ना, क्या करोगे उसका रिटर्न का। चांदी उस दिन से लेकर आज तक, वो 2 लाख की चांदी आज 6-7 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, और वो 8 लाख रुपए को टच करके नीचे आई है। आप ये देखेंगे, ये कैंडल है, ये कैंडल 8 लाख को टच करके नीचे आई है। अब मैंने इसे फाइंड आउट कैसे किया कि चांदी ऐसे बढ़ने वाली है। मैंने सिंपली AI को कमांड्स दी कि 52 वीक हाइट स्टॉक्स विच आर गिविंग 10 ईयर ब्रेकआउट होता है कि एक प्राइस को अपने तोड़ रहा है 10 साल बाद, 15 साल बाद, एटलीस्ट 10 ईयर ब्रेकआउट। और
मैंने उसमें कंडीशन ये डाल दी कि मार्केट कैपिटल उसका एटलीस्ट 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 10,000 करोड़ से जितनी भी नीचे की कंपनीज हैं उनका मतलब पता नहीं होता है, एटलीस्ट शेयर मार्केट में तो ऐसा ही है। तो ये प्राइस प्रेडिक्ट किया मेरे को एआई ने। अब एआई आप इस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं एआई के थ्रू, आप बहुत अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह, क्योंकि बहुत लोग, अब बंदर अपना दोस्त आपने सबने शायद देखा होगा, बंदर अपना दोस्त देखा है, किसी ने देखा है यहाँ पे? नहीं, एआई की वीडियोस वो इतना क्रिंज कंटेंट बनाता है, इतने सिंपल एआई के प्रॉम्प्ट्स डाल के बनाता है, आप जरूर सर्च कीजिएगा बंदर अपना दोस्त, और आज वो लाखों का रेवेन्यू कमा रहा है। उसके मेरे ख्याल से 2-3 मिलियन के बहुत जल्दी पिछले 1-2 महीने में 2-3 मिलियन के आसपास क्रॉस हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। तो बस मेरा यही कहना है, और शायद सीसीआई और डीएवी की तरफ से भी यही कहना है कि जो हमारे यंग माइंड्स हैं उन्हें एआई की तरफ इन्वॉल्व होना चाहिए, उन्हें एआई के अंदर और डीप सर्च करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। आपकी पढ़ाई यहाँ की इतनी काम नहीं आएगी जितनी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप बाहर के एनवायरनमेंट की लेंगे, जैसे कि एआई ही है, सबसे बड़ा तो एआई है। आने वाले टाइम में एआई बहुत ऊपर निकल रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आप इतने यंग माइंड्स उस रेस को मिस करें। इसे देखें, इसे समझें। जो भी एक टूल को, कोई भी एआई का एक ऐसा टूल पकड़ लिया, चाहे वीडियोग्राफी हो, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ का टूल हो, उस टूल को पकड़ें और उसकी तरफ डीपली उसे सर्च करें, रिसर्च करें। उसमें कुछ नहीं लगता है, मेरे ख्याल से 1 घंटा डेली अगर आप देंगे अगले 30 दिन के लिए भी, तो आप एक टूल के मास्टर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। Can you explain share market थोड़ा? शेयर मार्केट के बारे में किसको थोड़ी बहुत नॉलेज है? आप लोगों के लेक्चर्स भी हुए शेयर मार्केट के, तो आई थिंक यहाँ पर है ना, लेक्चर्स अटेंड किए हैं मैम नेहा मैम? नहीं शेयर मार्केट तो नहीं किया ना। हाँ, लिटिल एक्सप्लेन अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें तो आइडिया नहीं है शेयर मार्केट का। सी वो तो था सिल्वर का चार्ट। अब ये है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड एक कंपनी है जो कि जिंक को, सिल्वर को और इन चीज़ों को बनाती है। अब सेम वही स्ट्रैटेजी 2010 में इसका प्राइस 5499 था। 2025 में इसका प्राइस अगेन 499 है। इस मंथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस शेयर में। आपका स्टॉप लॉस, शेयर मार्केट इज नॉट जस्ट कि आपका प्रॉफिट ही होना है, लॉसेस भी होते हैं इसमें। और लॉसेस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है स्टॉप लॉस। कि आप अपना लॉस पहले ही देख लें कि हाँ मेरा इतना ही लॉस हो सकता है, मेरा यही लॉस हो सकता है, दैट इज माई मैक्सिमम लॉस, कि इसके बाद मैं लूँगा। अब मैंने यहाँ पर अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 499 पर, तो मेरा स्टॉप लॉस 480 है। मतलब मैं 5 लाख में से 20,000 रुपये का लॉस लेने को तैयार हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं 1:3 रेशो में चलूँगा। मैं 1:3 रेशो में 1:3 मतलब 20 मेरा लॉस है, 1:3 कितना हुआ 20 का? एनीवन? 20 का 1:3 कितना हुआ? 20 का 1:3 हुआ 60, 20-60, कि मैं 60 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए 20 रुपये अपने दाव पे लगा रहा हूँ। दैट इज जुआ। वैसे शेयर मार्केट को कहते तो जुआ ही है, बट जुआ भी तरीके से खेला जाता है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, 1:3 ये रेशियो है, 1:3 मेरे को अचीव हुआ है, इसमें तो एटलीस्ट हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि हर जगह होगा, लेकिन आपके अगर 2 लॉस ट्रेड हो रहे हैं, 2 आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, 2 लॉस ट्रेड्स हैं, 2 आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, तो आपके 2 जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो आपके अगले 8 लॉस ट्रेड्स को रिकवर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं दे तो 20 रुपये रहा हूँ, 20, 40, लेकिन मैं कमा कितना रहा हूँ 60 रुपये, यानी 120 रुपये 2 स्टॉक्स का। तो 40, 120, तो आप समझिए कि मेरे पास अगले कई ट्रेड्स के लिए बहुत सारा पैसा बच गया। अगर मैं अगले मेरे 3 ट्रेड्स भी लॉस में रहते हैं तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। तो दैट इज द थिंग। आप स्ट्रैटेजीज बनाइए। आपको कैंडल्स के बारे में पता है कुछ? नहीं? आपको बड़ी अजीब सी चीज तो नहीं लग रही है? अच्छा, आप ये करते हैं आपसे। जी। ये इसको थोड़ा आप जूम इन कर सकते हैं। जूम
ऊपर 3 डॉट्स पे जाओ बेटा, वहाँ पे जाकर देखो ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करो। मैक्सिमाइज करो बच्चे। सी कैंडल्स होती हैं, ये जो आपको लाल हरी दिख रही है, ये सब कैंडल्स हैं। कैंडल्स क्या करती है? कैंडल्स होती है, एक प्राइस है, मेरे पास प्राइस है, आज मेरा शेयर 500 रुपये में है। जब ये यहाँ पे ओपन हुई है, आज महीने का पहला दिन मान के चलिए, यहाँ मेरी कैंडल ओपन हुई है और ये जो आप विक्स देख रहे हैं कि मेरा प्राइस यहाँ तक भी गया है लेकिन वापस नीचे यहाँ से है। आप छोड़ दीजिए इस चीज़ को, आप सिर्फ ये समझिए कि एक्चुअली इन बच्चों ने कभी डील नहीं किया ना। हाँ, नहीं किया होगा। नेक्स्ट टाइम आप चाहेंगे मैं स्टॉक मार्केट की क्लास आपके लिए लूँ? Yes, sir. श्योर, मैं आप लोगों के लिए जरूर एक नेक्स्ट टाइम स्टॉक एक्चुअली मार्केट सर जो क्लास टूल्स बताने आए हैं तो स्टॉक मार्केट भी इट इज अ इंडस्ट्री। हाँ, मैं खुद इस भी इंडस्ट्री में डिफरेंट टूल यू कैन यूज। एआई का यूज तो आप हर इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अब मैं स्टॉक मार्केट में कैसे करता हूँ ये मैंने आपको तरीका बताया एपीआई के थ्रू। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा ट्रेड कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मेरा लॉस होगा तो वो भी अपना होगा, मेरा प्रॉफिट भी लगा हुआ है, जब जितना मेरा कैप प्रॉफिट है जब वो होगा तो मैं वो भी लेने को आप तैयार इसके लिए पाइथन यूज करते हैं? हूँ। मैं पाइथन में मैं खुद नहीं करता हूँ, मैंने अपना किसी के थ्रू एपीआई बनवाया। अच्छा। हाँ, मैं एक इंस्टीट्यूट में था, इस्मा करके है चंडीगढ़ में, तो मैंने उनके थ्रू ट्रेनिंग ली थी, उन्हीं के थ्रू मैंने इस्मा से वो पाइथन की लैंग्वेज बनाई है। और आप जानेंगे नहीं, मैंने 1 लाख रुपए दिया है इस लैंग्वेज को बनाने के, मतलब इस प्लेटफॉर्म के लिए, सर्विस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और ये काम एआई फ्री में करता है। तो रिक्वायरमेंट्स आपने दी थी, आपको क्या चाहिए? हाँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स मैंने दी कि मेरे को मेरी ये स्ट्रैटेजी है, इस हिसाब से मेरे को बनाना है। मतलब आपको बेस नॉलेज थी, आपने उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स हाँ जी, हाँ दी, जी, यू गेट दिस हाँ जी, हाँ जी। Any questions? ठीक है, I'll conclude my lecture with that. Thank you again, thank you teachers, thank you students for being so patient. Do you have any queries? एक अनाउंसमेंट चैनल रह गया था बच्चों को बताने 15 स्लाइड। आपको पता है आज की डेट में हर बच्चे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ही चाहे। हाँ, आप 1000 रुपये एटलीस्ट अपने माँ बाप को ये जरूर कहिए कि 1000 रुपये किसी ना किसी निफ्टी 20, गोल्ड 20, हर चीज़ ले सकते हैं हम आजकल। अब आप गोल्ड ही देखिए ना, 14% कैगर रिटर्न दे रहा है। अब 14% पर रिटर्न अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए 2000 में किया हुआ आज के टाइम में 1 करोड़ है। वो दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी आप कंपाउंडिंग की तरफ मतलब उसे समझेंगे ना, दैट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एसआईपी भी, एसआईपी, दैट इज एसआईपी क्या करती है ना, आपका एवरेज ले लेती है। अब ये शेयर है, अब ये शेयर कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप हर मंथ, ये मंथ की कैंडल है, 1 महीने में क्या हो रहा है शेयर में, हर मंथ आप यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ इन्वेस्ट करें, आप 10 साल तक भी इन्वेस्टमेंट करते रहे ना, तो आप सोचिए आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक का जो एवरेज प्राइस आएगा ना वो बहुत लो आता है। दैट इज वाई हर कोई रिकमेंड करता है SIP लें, SIP लें, SIP सही है, SIP सही है। तो दैट इज द रीजन। आप पढ़ें, SIP के बारे में पढ़ें, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ें, AI के बारे में पढ़ें। ये 3 ऐसी चीज़ हैं कि मतलब आने वाले टाइम में हर हिंदुस्तानी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर हमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनानी है। सिर्फ ऐसे नहीं, और आप लोग तो वैसे भी लेडीज़ हैं, आप लोगों की वजह से तो कम से कम कई पीढ़ियाँ पढ़ लिख लेंगी, कुछ सीख लेंगे अगर आपको इतनी नॉलेज है। तो आई वुड अगेन रिकमेंड यू कि आप इन चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान दें। सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई तक लिमिटेड ना रहें। कॉलेज की पढ़ाई बहुत आसान है, AI ChatGPT के थ्रू ये पढ़ाई आजकल भी बड़ी आसानी से हो रही है। तो आप इसके बारे में और डीप रिसर्च करें और समझें इस बारे में। थैंक यू। बच्चे पाइथन यूज करते हैं, मतलब ये किस स्पेसिफिक डोमेन में क्या करें? आज तो पाइथन का ऐसा हो गया ना, जो रेडी है, अब वो आपकी पूरी पाइथन की लैंग्वेज। मैं तो खुद टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं तो पाइथन के बारे में, मैं तो कोडिंग के बारे में, लेकिन रेडिट के थ्रू आपको पाइथन कोडिंग की यहाँ पर रेडिट पे डालेंगे, कोड आपको लिखेगा।
पाइथन और बहुत अच्छे हैं। कल इसका नया इंटरव्यू था, इसको डिस्करेज किया गया पाइथन। He said that Python was future yet. It's a very easy language, and why you are pursuing that? पाइथन का फ्यूचर है, पाइथन का फ्यूचर है। वो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि एआई आ गया। अब एआई के थ्रू इतना इजी हो गया कि आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालें तो आपको पूरा कोड लिख के दे देता है। अब वो कोड आपको तो लिख के दे रहा है, लेकिन हर किसी को तो नॉलेज नहीं है ना वो कोड कैसे काम करेगा, उसमें क्या बग आ रहा है। अगर कोई बग आ रहा है तो आप ही देख सकते हैं। दैट इज़ योर रिक्वायरमेंट, वो आपकी स्किल है, वो ही आपको काम है।